बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you secondary class? I hope everybody will be fine inshallah with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, I say welcome to all to online class. And dear students, as you know that we are already studying our chapter number 5, that is on destroying books, and we have read almost more than half of the lesson. ठीक है बेटा? So in this lesson, as I told you in previous lecture, that the author, that is J.C. Squire, he wanted to get rid of the heap of books that he had kept in his house, and all these books, they are very old, and he wanted to he wanted to get rid of those books. So what did he do for this purpose? That he put all the books into the sack, and he you can say picked that sack and went to the you can say embankment of the river in order to throw it. But while throwing the sack into the water, certain you can say thinkings and certain things came into his mind, that if any constable or if people will see him throwing a sack into the river, so they will misunderstand him, that maybe he is a killer who is throwing the you can say corpse of a person into the sack. So he was quite horrified and terrified by these such kind of thoughts. So let's continue our text. Okay, what is saying that the next thought came like a blaze. Okay बेटा, blaze mean glare, चमक. तो अगला जो उसको ख्याल आया था वो एक बिल्कुल नीली आसमानी बिजली की तरह आया था. टेरिबल ब्लू लाइटिंग अक्रॉस माई माइंड. उसके जहन में जो है वो बिल्कुल एक ब्लू लाइटनिंग की तरह आया था. व्हाट अबाउट द स्प्लैश? स्प्लैश के बारे में क्या? नॉइज़ या साउंड, उसके बारे में क्या होगा अगर स्प्लैश सुनाई दी लोगों को? तो A man leaning at midnight over the embankment wall, a sudden fling of his arms, a great splash in the water. और फिर fling mean throw. तो कहता है कि एक आदमी जो है वो उसके यू कैन से कि जो उसका embankment का वो है, पुल है, ये ब्रिज है, ठीक है, उस पर झुका हुआ है, और जो है वो उसके हाथ में क्या है, अचानक इसके बाजू का किसी चीज़ को फेंकना और पानी में एक ज़ोरदार छपाके की आवाज़. ठीक है, ओके. Whoever was within sight and hearing surely acted not without reason. Whoever was within sight and hearing would at once rush at me and seize me. कहता है जो भी कोई सुनेगा या देखेगा तो फ़ौरन आके मुझे पकड़ लेगा. In all probability they would think that was a baby. What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of the pack of पोइट्री. कहता है कि मैं लंदन का कांस्टेबल है, उसको बताने का मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मैं तो यहाँ पे आया हूँ, इतनी सर्दी में बाहर आया हूँ, तो मैं क्या चीज़ फेंकने आया हूँ? मैं तो यहाँ शायरी की किताबें, उनका जो गच है मेरे पास, जो उनका इतना ज़्यादा हीप है, पायल है, उसको फेंकने आया हूँ. आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्रफ स्नीरिंग लाफ. तो कहता है कि मुझे उसकी ग्रफ मीन जो होती है बेटा हॉर्स या हार्श, और उसको कह सकते हैं स्नीरिंग मीन स्निपिंग या मॉकिंग, के उसका जो मजाक उड़ाता हुआ उसका लहजा है बेटा. आई कुड ऑलमोस्ट हियर, कहता है मैं उसको फील कर सकता था, मैं सुन सकता था कि कैसे रिएक्ट करेगा जो कांस्टेबल है. यू टेल दैट टू द मैरीन्स माई सन. कहता है कि तुम ये कहानियाँ ना किसी और को सुनाना जाके. ठीक है. So far I do not know how long I stayed up and down, increasingly fearful of being watched, summoning up my courage to take the plunge and quality from it at the last moment. Okay बेटा, पता कहते हैं कि so far I do not know how long I strayed. Stray mean wander. चलता फिरता रहा था वो पकड़ के अपनी उसको बोरी को. ठीक है, ऊपर नीचे वो जाता रहा. increasingly fearful, और बहुत ही ज़्यादा बेटा वो उसका खौफ जो था वो बढ़ रहा था, of being watched, के देखे जाने का खौफ. Summoning up my courage. okay बेटा, summon up होता है गैदर, यकजा करना, दोबारा से रिस्टोर करना अपनी करेज को. So summoning up my courage to take the plunge mean कि जो उसने वहाँ पे जो है वो टेक अ डिसिसिव स्टेप, के एक फैसलाकुन कदम. टेक अ प्लान मीन टू हैव सम डिसीजन. तो बेटा उसने अपनी करेज सारी इकट्ठी की और एक फ़ैसला लेने के लिए. एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट. क्वेल मीन रिकॉयल या श्रिंक. और कहते हैं कि फिर जो है वो सारी अपनी हिम्मत इकट्ठी करता और आखिरी लम्हे जो है वो दोबारा से वो जो है वो रिट्रीट कर लेता, मीन उसे पसपाई इख्तियार कर लेता. At last I did it. In the middle of Chelsea Bridge there are projecting circular bays with seats in them. कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया.
चेल्सी पुल के वस्त में क्या बेटा बाहर को निकले हुए गोल छज्जे थे, ठीक है। देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, सर्कुलर बे किसको कहते हैं, अल्कोव को या नुक को, छज्जा जिसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। बेस विद सीट्स इन दैम, जिसके साथ सीट्स बनी हुई थी। आई इनमें इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, ओके बेटा, एग्नी मीन एंग्विश या पेन, कि जो फैसला लेते वक्त मुझे तकलीफ़ हो रही थी। आई लेफ्ट द इम्बैकमेंट, मैंने उस जो इम्बैकमेंट था, जो ब्रिज था, जो उसका बैंक था, उसको छोड़ दिया। एंड हैसन स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दी, और फैसला कुन महल पर। एंड आई कैन से दैट, यहाँ पे हो गया, आई लेफ्ट द इम्बैकमेंट एंड हैसन स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, कहते सबसे पहले मैंने जो है वो इन चीज़ों को तरफ देखा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, पहले इनकी तरफ गया, ओके। व्हेन आई रीच इच आई नेल्ट ऑन द सीट, कहते जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो आई नेल्ट ऑन द सीट, तो कहता कि मैं वहाँ पर नशिस्त पर, जो वहाँ पर जो जगह बनी हुई थी वहाँ पर झुक गया। आई लुकिंग ओवर, जायज़ा लेते हुए। आई हेजिटेटेड अगैन, तो मैं दोबारा से हेजिटेट किया, मतलब कि दोबारा से वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गया, ओके। सो बट आई हैड रीच द टर्निंग पॉइंट, ओके। टर्निंग पॉइंट किसको कहते हैं, मोमेंट ऑफ डिसीजन, कि जहाँ पे आप फैसला लेते हो उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। व्हाट आई थॉट सेविजली, ओके, सेविजली मीन फियरसली या स्टर्नली, तो कहते हैं कि मैंने जो है वो गज़बनाक अंदाज से सोचा, गज़बनाक फ्यूरियस होकर सोचा। अंडर द व्हाट आई थॉट सेवियसली अंडर द रेजोल्यूट मास्क, ओके बेटा, अंडर रेजोल्यूट मीन पुरअज़म, ठीक है, और मास्क मीन जो फेस होता है, ठीक है। तो कहता कि मैंने जो है वो उसमें देखा, What I thought savagely under the resolute mask that you show your friend is there really a shrinking and contemptible coward, क्या कोई जो है वो पसपाई इख्तियार करने वाला या काबिल नफ़रत बुज़दिल इंसान मौजूद है। If you fall now you must never hold your head up again, अगर कहता है कि अब तुम गिर गए या अपनी नज़रों में गिर गए तो तुम कभी दोबारा नहीं उठ सकोगे। बेटा कैसे नज़रों में गिरता कि अगर वो सैक को फेंकने में कामयाब ना होता तो वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है, ठीक है। एंड हाउ व्हाट इफ़ यू आर हैंग फॉर इट, तो कहते हैं कि क्या हुआ अगर तुम उसके लिए जो है वो सूली पर चढ़ना पड़ेगा, तुम्हें क्या हो जाएगा। गुड गॉड, ओ खुदा यार, उसने कहा करें। वर्म बेटर देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, कहता है कि तुम्हें उस पर सूली पर चढ़ गया तो कहता है कि तुमसे बेहतर इंसान जो है, ये वर्म बेटर मेन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, कहता है तुमसे तो बेहतर आदमी जो थे उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, सो तुम क्या चीज़ हो। विद द करेज ऑफ डेस्पेयर आई टुक अ हीव, कहता है कि डेस्पेयर में आके, मायूसी में, फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने एक हीव मीन ब्रीथ या साई, उसने एक सांस ली, आह भरी, ठीक है। अच्छा, द सैक ड्रॉप्ड शियर, उसके बाद बेटा उसने सैक फेंकी उसमें पानी में, तो वो शियर, बिल्कुल शियर मीन सीधी, द सैक ड्रॉप्ड शियर, बोरी बिल्कुल सीधी जाके नीचे जा गिरी। द साइलेंस अवाज स्प्लैश, जोर का बेटा धमाका हुआ, छपाका हुआ, जिससे पानी उछल के आता है उसको स्प्लैश कहते हैं। द साइलेंस फैल अगैन, तो दोबारा से खामोशी छा गई। नो वन केम, कोई भी नहीं आया। आई टर्न्ड होम एंड एज आई वॉकड आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट, कहते मैं जब घर वापस आया तो मैंने वो सारी किताबों को देखा, उनके बारे में अफसोस किया, ठीक है। द साइलेंस फैल अगैन, नो वन केम, आई टुक अ हीव, अच्छा बेटा ये हो गया था। और बुक्स लिटिल सैडली फॉल दोज बुक्स फॉलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट, ओके बेटा। कोल्ड टोरेंट मीन स्ट्रीम के उन जो ठंडी यकबस्ता जो मौजें थी या पानी की जो लहरें थी, उन जो उसमें पड़ी थी किताबें, उनके बारे में उसने बड़े अफसोस के साथ सोचा। सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेटा, पिची मीन ब्लैक, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लैक है ये इनकी है, या वो जो यू कैन से कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही थी उसमें गहरे पानी में। एंड सब साइडिंग एट लास्ट ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, ऊज मीन मख, या यू कैन से सेडिमेंट, जिसको कीचड़ कहते हैं। और कीचड़ में कहता है कि दरिया के पहने में आपको पता है ना कीचड़ होता है, मिट्टी होती है, तो कहता है वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही होंगी। देयर टू लाइफ forlorn and forgotten whilst the unconscious world of men went on, कहते हैं कि वहाँ पे वो अकेली तनहा पड़ी रहेंगी और फरामोश कर दी जाएंगी, जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया जो है वो इसी तरह चलती रहेगी। सो लास्ट पैराग्राफ, हॉरिबल बैड बुक्स,
ओके बेटा, हॉरिबल, नाउ ही इज़ कॉलिंग हिज बुक्स हॉरिबल, खौफनाक, टेरिबल, बुरी किताबों, पुअर इनोसेंट बुक्स। कभी बेटा उनको वो खौफनाक ही कह रहा है, कभी उनको पुअर कह रहा है, ठीक है। यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम वहाँ पे अभी तक वहाँ पड़ी हो। कवर्ड परहैप्स, हो सकता है तुम्हारे ऊपर अभी भी कवर पड़ा हो, ठीक है, विद मड बाय दिस टाइम, और तुम्हारे ऊपर जो अब कवर आ चुका है वो किसका है कवर? मड का कवर है, मिट्टी का, कीचड़ का कवर है। विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम इनटू द ओपेक ब्राउन स्टाइल्स। ओके बेटा, इसमें क्या कह रहा है? विच ओनली स्टैग। ओके बेटा, पहले तो स्ट्रे रैग, रैग का मीनिंग बता दूँ आपको। रैग मीन टॉर्न पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, जिसको चीथड़ा कहते हैं या कीचड़ से भरे हुए कपड़े कहते हैं। सेकंड, स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम। ओके, स्लाइम किसको कहते हैं? स्लाइमी कीचड़ को कहते हैं, और अपेक कहते हैं ऑब्सक्योर को या फेंट को, ठीक है। सो इसका मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कहना चाह रहा है कि तुम्हारी बोरी का जो तुम्हारी सैक है उसको कोई भटका हुआ चीथड़ा या कोई उसका उखड़ा हुआ चीथड़ा कीचड़ से बाहर पानी की तारीक भूरी मौजों में निकला हुआ होगा, ठीक है। ओपेक ब्राउन टाइड्स, पानी की भूरी मौजें जो हैं उनके, जो पानी बेटा मिट्टी वाला पानी होता है उसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है। तो कहता है उसमें वो पड़ा होगा या उसमें से वो नज़र आ रहा होगा। और जियाना, सोनेट टू एथिल, ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लेंसुलेट, ठीक है। अब ये बेटा, और स्टैंजाज ऑन अ फर्स्ट ग्लेम्स ऑफ वीनिस, यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, कहते तुम वहाँ पे पड़ी हो, ठीक है, और अब दी लिविंग डेथ के हमेशा की मौत है तुम वहाँ पे। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व, और तुम्हारी किस्मत इससे भी ज़्यादा बुरी निकली जिसकी तुम मुस्तहिक थी। ओके बेटा, दिस इज़ द एंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी, योर essay number 5 on the Stein books, and what is the work for you, that you will read the text very carefully and you will prepare its similar meanings and also the question answers. Beta, the question answers that are given in your exercise, and also the few questions are asked from the lesson, from the essay टेक्स्ट, उसके जो टेक्स्ट होती है उसके अंदर से बेटा, उसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। कुछ तो हम हमारे जो ये बुक वाले हैं ना, उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और कुछ इसके अलावा बेटा एडिशनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट is very much important. So beta, I hope all of you have well understood the lesson. So remember in your praise, and Allah Hafiz.